Namaskar friends, we are continuing energy again. There was some interruption, so the video is broken in two parts. This is the second part of energy. As long as we press it gently, it can come back to its original shape. When balloon की बात हो रही है, when the force is withdrawn. However, if we press the balloon hard, it can even explode, producing a blasting sound. In all these examples, the objects acquire through different means the capabilities of doing work. An object having a capability to do work is said to possess energy. ये इसकी definition है energy की. क्या है? Energy is nothing but the capability of doing work. Capability of doing work is called energy. Capability of doing work is called energy. Capability of doing work is called energy. The object which does the work loses energy and the object on which the work is done gains energy. एक से एनर्जी निकलती है दूसरे में चली जाती है. एनर्जी हम देखेंगे आगे इज नेवर लॉस्ट, कंजर्व नहीं होती. जैसे मोमेंटम का पढ़ा था, मास का पढ़ा था, तो हमने ज़्यादातर जो केमिस्ट्री फिजिक्स में है, एनर्जी जहाँ जहाँ भी है वो कभी भी ना तो क्रिएट होती है ना लॉस्ट होती है. इट रिमेन्स द सेम. हाउ डज एन इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर, है ना. How does an object with energy do work? An object that possesses energy can exert a force on another object. ठीक है. वर्क कैसे करते हैं? एक जब how does an object with energy do work? An object that possesses energy can exert a force on another object. उससे वर्क होता है. वर्क फोर्स लगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट होता है, याद रखना, डिस्टेंस नहीं होता है. फोर्स इज इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन. व्हेन दिस हैपेंस, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फॉर्मर टू द लेटर. द सेकंड ऑब्जेक्ट मे मूव as it receives energy and therefore do some work. Thus the first object had a capacity to do work. This implies that any object that possesses energy can do work. The energy possessed by an object is thus measured in terms of the capacity of doing work. So the unit of energy is therefore the same as the work. वर्क की जो एनर्जी होती है, जूल्स, वही एनर्जी इसकी होती है. तो 1 joule is the energy required to do 1 joule of work. ठीक है, सीधी सी डेफिनेशन होगी. 1 joule of energy required to do a 1 joule of work. Sometimes a larger unit of energy called kilojoule also is used. तो 1 kilojoule equals क्या हो जाएगी? 1000 joules. अब नाउ 11.2.1 में है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. कितनी तरह की एनर्जी होती है. यस सर. तो हम वी आर luckily the world we live in provides energy in many different forms. The various forms include potential energy, kinetic energy, heat energy, chemical energy, electrical energy, and light energy, and also sound energy. आपने पढ़ी थी, है ना. तो that और भी तरह, न्यूक्लियर एनर्जी, कई तरह की एनर्जी, और टाइड एनर्जी, टाइडल वेव से जो होती है. यस है. और तो think it over. How do you know that some entity is a form of energy? Discuss with your friends and teachers. तो जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो टू डू वर्क, वो एनर्जी की सोर्स ऑफ एनर्जी. यस सर. ना उसके बाद जेम्स प्रेस्कॉट जूल, जिसने ये एनर्जी की यूनिट दी थी, उसके बारे में बताया है, फिजिक्स के बारे में. ये वॉज एन आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिजिस्ट. He is best known for the research in electricity and thermodynamics, among other things. He formulated a law for the heating effect of electric current. He also verified experimentally the law of conservation of energy and discovered the value of the mechanical equivalent of heat. The unit of energy and work called joule is named after him. तो काइनेटिक एनर्जी 11.22 देखते हैं. एक्टिविटी 11.6. टेक ए हैवी बॉल, ड्रॉप इट ऑन ए थिक बेड ऑफ सैंड. ए वेट बेड ऑफ सैंड वुड बी बेटर, यानी गीला हो सैंड की. ड्रॉप द बॉल ऑन द सैंड बेड फ्रॉम द हाइट ऑफ अबाउट 25 सेंटीमीटर. द बॉल क्रिएट्स ए डिप्रेशन हो जाएगा सैंड में, उसकी मतलब वो बन जाएगी, है ना.
Speed, repeat the activity from heights of 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर एंड 1.5 मीटर. बढ़ाते जाइए, करते जाइए, तो आप देखेंगे डिप्रेशन बढ़ता चला जाएगा. एंश्योर दैट ऑल द डिप्रेशंस आर डिस्टिंक्टली विजिबल. एक ही जगह मत करो, अलग अलग जगह करो, ताकि आपको दिखे कि ये इससे किया था, ये उससे किया था, तो कंपेयर करो, है ना. Mark the depressions to indicate the height from which the balls were dropped. Compare their depths. Which one of them is deepest? जो सबसे हाइट से 1.5 मीटर, जो सबसे ज़्यादा हाइट से फेंकेंगे उसमें, इसका मतलब उसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड है. यस सर. मैंने आपको बताया था जितना हाइट पे हम ले जाते हैं पृथ्वी से, उसके अंदर एनर्जी उतनी स्टोर हो सकती है. एक छोटा सा भी पत्थर अगर ऊपर से बहुत बड़ी मंजिल से फेंको और हल्का सा, उसकी एनर्जी इतनी होती है कि वो सर में छेद कर दे, बुलेट की तरह घूमते. समझ में आया नहीं आया? यस सर. अगर किसी के सर पे पड़े तो. What has caused the ball to make a deeper dent? Discuss and analyze. तो इसकी क्या हाइट बढ़ने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है. Yes. अभी हम देखेंगे आगे, यही हो रहा है ना. एक्टिविटी 11.7. सेट अप द apparatus as shown in figure 11.5. ये एक टेबल के ऊपर एक कार है, बच्चों की टॉय है, और उसके पीछे कुछ टॉय वो पुली उली लगा करके, और एक नीचे वेट लगाया हुआ है ना. और तो प्लेस ए वुडन ब्लॉक ऑफ नोन मास इन फ्रंट ऑफ द ट्रॉली एट ए कन्वीनियंट फिक्स्ड डिस्टेंस. प्लेस ए नोन मास ऑन द पेन सो दैट द ट्रॉली स्टार्ट्स मूविंग. इस पेन में जब रखा तो it starts moving. यस सर. और ये the trolley moves towards and hits the wooden block. ठीक है. यस सर. Fix a stop on the table in such a manner that the trolley stops after hitting the block. The block gets displaced. ब्लॉक क्या होगा, उस जगह से हिल जाएगा. दिखाया यहाँ से डिस्प्लेस होकर इधर आ गया. यस सर. है ना. ठीक है. तो नोट डाउन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक. दिस मीन्स दैट वर्क इज डन ऑन द ब्लॉक बाय द ट्रॉली एज द ब्लॉक हैज गेन्ड एनर्जी. तो ब्लॉक को एनर्जी कहाँ से मिली? ट्रॉली से. ट्रॉली को एनर्जी कहाँ से आई? मूवमेंट हो रहा है नीचे. ये नीचे ब्लॉक लगाया तो काइनेटिक एनर्जी आ गई. अब ये दूसरी तरह की एनर्जी है. वो पहले वाली जो थी पोटेंशियल एनर्जी थी पिछली एक्टिविटी में, और इस एक्टिविटी में क्या दिखाया है? काइनेटिक एनर्जी. एनर्जी ड्यू टू दी मोशन. So note down the displacement of the block. This means work is done on the block by the trolley as the block has gained energy. From where does the energy come? Repeat this activity by increasing the mass of the pan में वापस मास आप दूसरा रख दो. In which case is different more? In which the case is more done more? ज़्यादा वजन होगा तो ज़्यादा हो जाएगी एनर्जी. वेट रख दो. In which case is the activity the more trolley does work and hence possesses energy. तो ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क. क्या कहते हैं? मूविंग ऑब्जेक्ट है वो भी वर्क कर सकता है. एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क देन एन ऑब्जेक्ट, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो. तो ए मूविंग बुलेट, ग्लोइंग विंड, ए रोटेटिंग व्हील, ए स्पीडिंग स्टोन कैन डू वर्क. How does a bullet pierce the target? How does the wind move the blades of a windmill? Objects in motion possess energy. तो इसका कारण क्या है? मोशन जो है एनर्जी possess करता है. इसको हम we call this energy as kinetic energy. A falling coconut, a speeding car, a rolling stone, a flying aircraft, flowing water, blowing wind, a running athlete, etc. possess kinetic energy. ठीक है. In short, kinetic energy is the energy possessed by an object due to its motion. जो मोशन से होती है वो काइनेटिक एनर्जी है. जो पोजीशन से होती है वो पोटेंशियल एनर्जी. पोजीशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, मोशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद इट्स स्पीड. जैसे स्पीड बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. तो हम देखेंगे दोनों का फार्मूला निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का भी और काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला है. So how much energy is possessed by a moving body by virtue of its motion? By definition, we say that the kinetic energy of a body moving with a certain velocity is equal to the work done on it to make it acquire that velocity. क्या समझ आया?
By definition, we say that the kinetic energy of a body moving with a certain velocity is equal to the work done on it to make it acquire that velocity. इसके ऊपर किसी ने वर्क डन किया तो वो वेलोसिटी एक्वायर की और उससे उसको एनर्जी मिली. समझ में आया? Yes. So let us now express the kinetic energy of an object in the form of an equation. Consider an object, इसको ध्यान से पढ़िएगा, सुनिए, समझिएगा. Consider an object of mass m, small m, moving with a uniform velocity u, small u. Let it now be displaced through a distance small s when a constant force f x on it in the direction of its displacement. तो इसमें s यहाँ पर distance लिखा है लेकिन displacement है. From equation इतना, the work done w is f into s. The work done on the object will cause a Change in its velocity. Let its velocity change from u to v, small v. Let a be small a be the acceleration produced. ये सब वही notations हैं जो हम पहले यूज करते आए हैं. Yes. In section 8.5 we studied 3 equations of motion. The relation, ये भी straight line motion है इसलिए वो तीनों लगेंगी इसमें. The relation connecting the initial velocity u and final velocity v of an object moving with a uniform acceleration a and the displacement s is v square minus u square equal to 2as. ये भी एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी. इसको हमने s निकाला तो s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a हो गया. फ्रॉम इक्वेशन 9.4 वी नो दैट f इज इक्वल टू m है. f इज इक्वल टू m हमें पता है ना. Yes. दस इक्वेशन भी दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों को किसको एक्सलेशन की वैल्यू, इसमें s की वैल्यू में डाल दिया s की वैल्यू किसकी. Yes. We can write that the work done by the force F as work done equal to mass into acceleration. भाई वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू एस. तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सलेशन. Yes sir. और इंटू एस की जगह क्या आएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं. तो उसको जब काटा पीटा किया तो जो सॉल्व किया तो क्या आया? डब्ल्यू इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ए से ए कैंसिल हो गया ना. तो हाफ एम वी ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये इसकी एनर्जी की इक्वेशन होगी. यानी अगर किसी की इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी वी है, वहाँ से उसका एम है, तो उसकी वर्क डन होगा इतना, तो यानी कि कैपे उसके अंदर एनर्जी इतनी होगी स्टोर. आ गया समझ में? क्योंकि ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दी स्टेशनरी पोजिशन. अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजिशन में चल रहा है हमेशा ही, तो फिर यू जीरो को हटा देते हैं तो वी डब्ल्यू टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है. पर इसके अंदर कंडीशन ये है कि इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो. एक्चुअल फार्मूला तो 11.3 है, पर मॉडिफाइड कर दिया. अगर केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो तो फार्मूला ये हो जाएगा. पर आप पहला वाला याद रखिए. तो इट इज क्लियर दैट द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहलाती है. और द ऑब्जेक्ट पहले काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एम यू स्क्वायर थी, बाद में हाफ एम वी स्क्वायर हो गई है. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. Thus the kinetic energy possessed by an object of mass m and moving with a uniform velocity v is half mv square. अगर उसी रफ्तार से जा रही है तो हाफ एम वी स्क्वायर ले सकते हैं. Yes, sir. यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर वो u0 हो. हाँ इनिशियल. सॉल्यूशन है. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m is equal to 15 kilogram. Velocity of the object is 4 meters per second. Then e kinetic is to half mv square. रख दिया वैल्यू 120 joules आ गई. ठीक है. Example 11.4. What is the work done to be done to increase the velocity of a car from 30 kilometers per hour to 60 kilometers per hour? If the mass of the car is 1500 kg. Solution क्या है? मास ऑफ द कार यानी कि स्मॉल एम है 1500 kg. इनिशियल वेलोसिटी यू इज 30 है कि इतना. इसको मीटर्स पर सेकंड में चेंज कर लिया. वही मैंने आपको बताया था 5/18 है ना. तो सिमिलरली द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार को चेंज कर लिया, वो भी इसमें लिया है मीटर्स पर सेकंड में 16.67 स्मॉल भी. देयरफॉर द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार इज, इनिशियल अलग निकाल ली, फाइनल अलग निकाल ली. ठीक है. चेंज ऑफ वेलोसिटी दोनों घटा दिया, वही वर्क डन आ गया. मतलब वही फार्मूला लगा दिया 11.3 वाला. इसके अलग निकालिए कि इनिशियल क्या निकाली काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी मतलब का फार्मूला ये हो गया, इनिशियल ये फाइनल ये, और दोनों का डिफरेंस जो है
तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर या हाफ एम यू स्क्वायर, है ना। क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो इसको आप डिफाइन करिए। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको फार्मूला लिखिए, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना। Yes, sir. The kinetic energy of an object of mass m moving with a velocity of itna is itna. So what will be the kinetic energy when the velocity is doubled? What will be its kinetic energy when the velocity is increased 3 times? तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं, फार्मूला की बेसिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई फार्मूला वही है, हाफ वी एम वी स्क्वायर लगाइए, पहले के वी एक डबल कर दिया फिर ट्रिपल कर दिया। यस सर। तो वो तीनों केस में निकाल के दिखा दो, पहले सिंगल में क्या था, बाद में क्या आया, और दूसरे में क्या आया, तीसरे में क्या आया, तो ये आप कर लोगे। नाउ 11.2.3 पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वी गो टू पोटेंशियल एनर्जी में। यस। इसने पहले काइनेटिक एनर्जी ली है, फिर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एक्टिविटी 11.8, टेक ए रबर बैंड, होल्ड इट एट वन एंड एंड पुल फ्रॉम द अदर, द बैंड स्ट्रेचेस, release the band at one of the ends. What happens? The band will tend to regain its original length. Obviously, the band had acquired energy in its stretch position. जब हमने stretch किया, it is stored the energy. Yes. और जैसे ही छोड़ा तो वो एनर्जी उसकी रिलीज हो गई। तो समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो how did it acquire energy when stretched? तो stretch क्या पोजीशन से हुई। This is not kinetic energy. Yes, sir. This is potential energy. Potential. Activity 11.9. Take a slinky as shown below. Slinky means ये एक spring है, और ask a friend to hold one end of its end, and you hold the other end and move away from your friend. Now you release this slinky. What happened? What happened? How did the slinky acquire energy when stretched? Yes sir. So how did the slinky acquire energy when stretched? Because of position. Would slinky acquire energy when it is compressed? अगर इसको compress करें तो एनर्जी रखेगी, यस, अगर वो वापस अपनी पोजीशन में आएगी, दोनों केस में। यस सर। तो एक्टिविटी 11.10, टेक ए टॉय कार, वाइंड इट यूजिंग इट्स की। की से मैंने कहा था वो जो उसके अंदर स्प्रिंग होती है गोल, एक ऐसी गोल स्प्रिंग होती है जो, यस सर। वो जो है इट गेट्स उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, पर वो फिर उसको काइनेटिक एनर्जी में बदल देता है, मतलब कार में व्हील लगे हुए होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में चले जाते हैं। तो प्लेस द कार ऑन द ग्राउंड, दैट डिड इट मूव, तो फ्रॉम वेयर डिड इट एक्वायर एनर्जी, डज द एनर्जी एक्वायर्ड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वाइंडिंग्स, हाउ कैन यू टेस्ट दिस। यस, ज़्यादा वाइंड करोगे तो ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। तो ये सब पोटेंशियल और पोजीशन, इसको हम पोटेंशियल का पोजीशन एनर्जी कहते हैं, ड्यू टू पोजीशन। तो 11.11 में क्या एक्टिविटी में, लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट थ्रू ए सर्टेन हाइट, द ऑब्जेक्ट कैन डू नॉट डू वर्क, इट बिगिंस टू फॉल व्हेन रिलीज्ड, है ना। दिस इम्प्लाइज दैट इट हैज एक्वायर्ड सम एनर्जी, इट रेज टू ए ग्रेटर हाइट, इट कैन डू मोर वर्क and hence possesses more energy. From where did it get the energy? This is think and research. The energy because of position, height. ठीक है ना? तो इसका भी फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। In the above situation, the energy gets stored due to the work done on the object. The energy transferred to the object is stored as potential energy. If it is not used to cause a change in the velocity or speed of the object. क्या मतलब है? The energy transferred to an object is stored as potential energy if it is not used to cause a change in the velocity or speed of the object. अगर वो उसी में मतलब वही स्टेट, मतलब उसकी पोजीशन में है और कोई वेलोसिटी वगैरह नहीं हो रही उसमें है, yes. तो वो उसकी पोजिशनल एनर्जी है।
Potential energy. Potential. You transfer energy when you stretch a rubber band, and the energy transferred to the band is its potential energy. You do work while winding the key of a toy car. The energy transferred to the spring inside is stored as potential energy. The potential energy possessed by the object is the energy present in it by virtue of its position or configuration. पोजीशन से या कॉन्फ़िगरेशन. पोजीशन तो जैसे वही है, ऊपर नीचे ऐसे लगा. कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया इलास्टिक बैंड वाला, बैलून वाला या स्प्रिंग वाला. ठीक है. यस सर. तो ये जो सारे केसेस थी 11.8 से लेकर 11.11 तक, वो सारे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के केसेस. नाउ एक्टिविटी 11.12 क्या है? टेक ए बैम्बू स्टिक एंड मेक ए बो शोन इन फिगर 11.6. प्लेस एन एरो मेड ऑफ ए लाइट स्टिक ऑन. वही आपको तीर कमान होता है यार, ये मतलब है. स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग. नाउ स्ट्रेच द स्ट्रिंग एंड रिलीज द एरो. नोटिस द एरो फ्लाइंग ऑफ द बो. ठीक है. नोटिस द चेंज इन द शेप ऑफ द बो. द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बो ड्यू टू इट्स चेंज इन शेप इज यूज. जैसे हमने इसको स्ट्रिंग को ऐसे किया तो इसकी शेप कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है शेप. तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई किसमें? बो में. और जैसे इसको छोड़ा वो चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी में. वो मतलब फिर क्या है, बो भाग रही है वेलोसिटी से, तो वो में क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी. तो वही पोटेंशियल एनर्जी है उसके अंदर चेंज होकर काइनेटिक एनर्जी में आ गई. समझ में आ रहा है? यस. यानी कि एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल. एनर्जी कैन बी कंजर्व्ड, मतलब है ना. यस. तो नोटिस दैट द बोथ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बो ड्यू टू द चेंज ऑफ शेप इज दस यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन थ्रोइंग ऑफ द एरो. ये उसमें दिखाया आपको फिगर 11.6 में. 11.2.4 जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट पे कैसे होती है. एक तो वो शेप वेव से थी सब अभी तक, तो अब हाइट पे कैसे हुई. एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इट्स एनर्जी व्हेन रेज्ड टू ए हाइट. दस दिस इज बिकॉज वर्क इज डन ऑन इट अगेंस्ट द ग्रेविटी while it is being raised. हम पहले पढ़ चुके हैं. The energy present in such an object is the gravitational potential energy. किसके कारण हुई? ग्रेविटेशनल अर्थ की ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी का. The gravitational potential energy of an object at a point above the ground is defined as the work done in raising it from the ground to the point against gravity. ये याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी. The gravitational potential energy of an object at a point above the ground is defined as the work done in raising it from the ground to the point against gravity. Gravity के against में हमने. Yes. It is easy to arrive at an expression for the gravitational potential energy of an object at a height h. तो कैसे निकालें हम? Consider an object of mass m. जैसे हमने एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालते हैं, इसका भी निकालते हैं. Let it be raised to a height h.